Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and I welcome you to this part second of the chapter Indigo. Before this, we have already covered part first of this chapter, where we have discussed how Gandhiji reached Champaran, where he was forced to leave the place. The commissioner of Tirhut division forced him, advised him to leave the place, to leave Tirhut. Now let's continue. Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. गांधी जी did not leave the place. गांधी जी ने वो जगह नहीं छोड़ी. Rather, he proceeded to Motihari. वहाँ से कहाँ चले गए वो? मोतीहारी चले गए. The capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. With him there were several lawyers. There were many lawyers who accompanied him. उनके साथ कई सारे वकील पहुँचते हैं. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. At the railway station, he was greeted by a crowd. There were many people who greeted him, who welcomed Mahatma Gandhi. He went to a house and using it as headquarters. उसके बाद वो एक घर में जाते हैं and he made it his headquarter. उसको क्या बना लिया अपना headquarter. Continued his investigations and thereafter he starts his investigation from there. He continued his investigations. अपनी जांच पड़ताल जारी रखते हैं वहाँ से. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. There came a report. एक खबर आई कि बगल वाले गांव में एक किसान के साथ बुरा बर्ताव किया गया है. Gandhi decided to go and see. At the same time, Gandhi decided to go and see that peasant, to visit that peasant. The next morning he started out on the back of an elephant. So next morning he started to meet that peasant. उससे मिलने के लिए वो घर से निकलते हैं हाथी की पीठ पे बैठ करके. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger, the messenger of superintendent of police, overtook him. आगे से आता है, आगे बढ़ करके, and ordered him to return to town in his carriage. वो कहता है कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, घोड़ा गाड़ी में, in the carriage, और चलिए शहर चलना है. गांधी complied. गांधी agreed. गांधी जी मान जाते हैं. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. वो मैसेंजर उनको अपने घर छोड़ता है. Where he served him with an official notice, और उनको एक नोटिस थमा देता है to quit Champaran. What was the notice about? The notice was about leaving Champaran. This was an official notice. Gandhi ji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. और उसी रिसीट पे उन्होंने लिख दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाऊंगा. He would disobey the order. In consequence, what was the result then? Gandhi received a summons to appear in the court the next day. अब नतीजा क्या हुआ? गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन आ गया. He was given a notice for coming to the court, appearing in the court the next day. All night Gandhi remained awake. उस रात गांधी जी सोते नहीं हैं. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He telegraphed, he wrote to Rajendra Prasad, where in Muzaffarpur, to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He sent instruction to the ashram as well, to his ashram. He wired a full report to the Viceroy and he telegraphed a full report to the Viceroy as well. Morning found the town of Motihari black with peasants. The next morning when he was about to appear in the court, the town was black with peasants. There were plenty of peasants all around, and that is why, because of their heads, the city was looking black.
They did not know Gandhiji's record in South Africa. They knew nothing about Gandhiji, his record in South Africa, his movements in South Africa, but they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble. गांधी जी के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, गांधी जी ने क्या किया था साउथ अफ्रीका में वो भी नहीं जानते थे, लेकिन बस उन्होंने ये सुना कि कोई महात्मा जी हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं और वो अभी ट्रबल में हैं विद द अथॉरिटीज़, ब्रिटिश लोगों के साथ. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, देयर अनफोर्स्ड प्रोटेस्ट in thousands, they were in thousands, in plenty of number, around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. And this was the beginning of their liberation, their freedom from their fear. This was the freedom from their fear, and that was because of British people, fear of the British. The officials felt powerless before these people, before this crowd. The officials felt powerless. जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो पावरलेस हो जाते, कुछ कर नहीं पाते विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन. गांधी जी अगर बीच बचाव नहीं करते तो वो कुछ नहीं कर सकते थे. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. तो गांधी जी हेल्प देम रेगुलेटिंग द क्राउड. गांधी जी ने लोगों को समझाया बुझाया. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. Gandhiji was very polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. He was giving them a message, a concrete proof that their might, उनकी जो ताकत थी, hitherto dreaded, जो पहले लोगों को डराती थी, earlier hitherto dreaded, full of fear एंड अनक्वेश्चनड, जिस पे कोई क्वेश्चन उंगली नहीं उठाता था, कुड बी चैलेंज्ड बाई इंडियंस. अब इसको चैलेंज किया जाएगा. इंडियंस विल चैलेंज दिस. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, कंफ्यूज्ड, what to do, what not. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. The public prosecutor requested the judge to postpone the trial. मुकदमा पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Authorities ने क्या निर्णय लिया? Authorities wished to consult their superiors, कि हम अपने superior से बात करेंगे. गांधी protested against the delay. अब देर हो रही थी तो गांधी जी ने विरोध किया. गांधी जी protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He read a statement, एक statement उन्होंने पढ़ा, pleading guilty, कि मैं दोषी हूँ. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. So he was involved in a conflict of duties. He accepted his fault in a humble manner. बड़े ही humble तरीके से, विनम्र तरीके से उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली. On the one hand, not to set a bad example as a लॉ ब्रेकर. एक तरफ तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली क्योंकि वो एक गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे. अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाला. ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, वाइल ऑन द अदर हैंड टू कॉज द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. दूसरी तरफ जिसके लिए वो आए थे, असल में जो उनका काम था, जिस विशेष कार्य के लिए वो चंपारण आए थे, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. और दूसरी तरफ मानवता के लिए उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए जो नोटिस आया था उनके पास, उसको डिसरिगार्ड कर दिया, मना कर दिया. नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ फॉर बीइंग. नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, वो उन अथॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ फॉर बीइंग, जो हमारे अंदर है, हमारा जमीर है. द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस. सो इट इज़ द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, इनर सेल्फ. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू. ही आस्क्ड फॉर पेनल्टी. जुर्माना क्या है ये बताइए.
The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. Then after the magistrate, the judge, announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. 2 घंटे का अंतराल होगा और फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा. These were the words of magistrate. And asked Gandhi ji to furnish bail for those 120 minutes. And asked Gandhi ji to furnish, to supply bail for those 120 minutes. तो 2 घंटे 120 मिनट्स आराम से आप जमानत पे रहिए. गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. तो गांधी जी ने कहा नहीं, मुझे जमानत नहीं चाहिए. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. और आखिर में जज ने उनको बिना बेल के, बिना जमानत के ही छोड़ दिया. When the court reconvened, reconvened here means resumed. When the court reconvened, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. जब फिर कोर्ट फिर से खुलता है, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. वो कई दिनों तक फैसला नहीं देगा. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Gandhi would remain at liberty. राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. अब इस टाइम तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी एक लॉयर थे, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. ये लोग आ गए. दे कन्फर्ड विद गांधी. तो गांधी जी से उन्होंने बात की, कन्फर्ड विद गांधी. व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन? गांधी आस्क्ड. अब गांधी जी ने उनसे पूछा कि मान लीजिए कि मुझे जेल हो गई, तब आप क्या करोगे? वाई? जेल क्यों होगी? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम. इफ ही वेंट टू जेल, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम. हम आपको सलाह देने के लिए यहाँ आए हैं. जब आपको जेल हो जाएगी तो किसको सलाह देंगे? हम भी घर चले जाएंगे. These were the words of senior lawyer. What about the injustice to the sharecroppers? Then Gandhiji asked, Gandhiji demanded, what about the injustice to the sharecroppers? अगर मुझे जेल हो गई तो क्या हुआ? लेकिन जिनके साथ injustice हो रहा है, what about the injustice to the sharecroppers, those peasants? The lawyers withdrew to consult. They stopped talking. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. Upshot summary. राजेंद्र प्रसाद ने पूरी समरी तैयार कर रखी थी. They thought amongst themselves. अब अपने आप में वो सोचते हैं, सारे लॉयर्स जो वहाँ आए हुए थे, वो सोचते हैं that गांधी जी was a totally stranger. महात्मा गांधी चंपारण के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं. And yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. वो तैयार हैं उन किसानों के लिए जेल जाने के लिए. If they on the other hand, while they on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants. ये तो अगल बगल के इलाके से बिलोंग करते हैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? गांधी जी अगर बाहरी होकर के तैयार हैं इनके लिए लड़ने के लिए, तो हम क्यों नहीं? शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन. तो ये बड़ा ही शर्मनाक होगा, ये छोड़ देना शर्मनाक होगा. शेमफुल डिजर्शन, लीविंग. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल. दे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस, they went to Mahatma Gandhi and told him that they were ready to follow him into jail itself. जेल में आपको होगी, कोई बात नहीं, हम जेल में आपसे आके मिलेंगे. The battle of Champaran is won, he exclaimed. इतना जब सुना उन्होंने, he exclaimed, battle of Champaran is won. अब तो हमने जीत लिया चंपारण, अब जीत लिया हमने. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to quote arrest. He took out piece of paper, divided the group, सबको ग्रुप में बांट दिया, पेयर्स में बांट दिया, and put down the order.
और लिखा, कागज़ पे लिखा कि उनको क्या करना था। इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, क्या करना था वो सब कुछ उन्होंने लिख दिया। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। काफ़ी दिन बीत गए, गांधी जी ने एक रिटन कम्युनिकेशन पाया, किससे? फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। क्या लेटर में लिखा था? कि उनके खिलाफ जो केस था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि उसको हटा दिया जाए, टू बी ड्रॉप्ड। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा जीत चुका था। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, भारत में पहली बार, आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, तो उनकी जीत हुई, उनके ऊपर से केस हटा दिया गया। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और बाकी लॉयर्स आगे बढ़ते हैं टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए, फार ऑफ इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस, जो हार्डशिप्स हैं उनकी, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, ऑफ फार्मर्स। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन, डिपोजिशंस, रिकॉर्ड्स, अबाउट 10,000 peasants, लगभग 10,000 peasants ने अपनी अपनी समस्याएं लिखी। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, कुछ नोट्स बनाए गए, रिकॉर्ड्स और बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट, पैशनेट प्रोटेस्ट, बड़े उत्साही लोग थे ये, सब लगे हुए थे समस्या का समाधान खोजने में, क्लू जुटाने में, एविडेंस जुटाने में। प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, जून के महीने में गांधी जी को सम्मन किया जाता है, बुलाया जाता है। टू हुम? टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको बुलाता है। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, जाने से पहले वो लीडिंग एसोसिएट्स से, जो उनके एसोसिएशन हेड होते हैं, उनसे मिलते हैं। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, फिर सबको बुला के वो समझाते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आया, मुझे जेल हो गई, तो आपको क्या करना है, वो सारा प्लान वो बना के जाते हैं।